اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ قربانی کی آمد ہے، حج کی آمد ہے۔ حج اور قربانی اکٹھے ہی آتے ہیں جیسا آپ کو پتہ ہے، تو اس پر میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں خاص کر جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی جگہ کیا ہے۔ مقام مراد جگہ، مقام و مرتبہ نہیں، مقام مراد جگہ۔ کہاں قربانی کرنی ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی قرآن میں ہے؟ کوئی اس نے جگہ معین کر دی ہو کہ یہاں قربانی کرنی ہے، یا اس کو ایسے چھوڑ دیا آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں مرضی قربانی کریں؟ اگر قرآن ہمیں رہنمائی کر دے، واضح الفاظ میں کر دے، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں۔ جب قرآن کی بات ہوتی ہے نا، تو بہت ساری پیشانیوں پر سلوٹیں پڑ جاتی آ جاتی ہے۔ یہ سارا کمال مذہبی پیشوائیت کا ہے۔ قرآن و سنت، قرآن و احادیث، قرآن و روایات دونوں اکٹھے یہ ہوں۔ یہ کیا ہوا، قرآن کی ایک آیت آپ نے لے لی، باقی مقامات دیکھے ہی نہیں تو بات کر دی۔ آپ باقی حدیثیں بھی دیکھیں، روایات بھی دیکھیں، علم ہونا چاہیے، علم ہوتا نہیں لوگوں کو، ایسی بات کر دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر جواب ہم جیسے میرے جیسے بندہ کو بات کرتا ہے تو یہی جواب ملتا ہے، ان کو پتہ نہیں، درس نظامی کیا نہیں، تو یہ بات کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر قربانی کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جگہ بتا دے، معین ہو جائے کہ فلاں جگہ ہی بنتی ہے، آپ نے جہاں قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، تو پھر قرآن سے کوئی اور بات ثابت کر دینا، ادھر ادھر سے پکڑا کر روایات ساتھ ملا کر کہ نہیں یہ جگہ نہیں، قرآن جگہ کا نام لے اور کوئی اور جگہ ہم بنا لیں اور وہاں سے ہم یہ شروع کر دیں، تو یہ تو تضاد ہوگا قرآن پاک میں۔ تو قرآن پاک میں تضاد محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ سورۃ النساء کی 82 نمبر آیت۔ قرآن میں اختلاف، اللہ کے کلام میں اختلاف، تضاد نہیں ہو سکتا۔ جیسا میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے ہم کہتے ہیں بقیہ مال و دولت جمع کرنا جائز بھی ہے، کو کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ دونوں متضاد باتیں ہیں آپس میں۔ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے بقیہ مال جمع کرنا یہ ایک چیز ہے، یہ سے ایک نظام جنم لیتا ہے، اور بقیہ مال کو جمع نہیں کرنا یہ ایک اور دوسرا نظام جنم لیتا ہے، یہ اسوہ حسنہ کی طرف جاتا ہے، اور جمع کرنے والا نظام سرمایہ دار، یعنی کہ متضاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ بنے گی۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی، جب عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چلے۔ میں پہلے تھوڑا سا عرض کروں کہ جب قرآن سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیشانیوں پر سلوٹیں کیوں آ جاتی ہیں۔ آپ مذہب سے متعلق کوئی بات، فلسفہ، منطق، تصوف، تفسیر، روایات وغیرہ میں سے کسی کے حوالے سے بھی کریں، اس پر کوئی معترض نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں آپ نے کسی موضوع کے متعلق یہ کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اس کی بابت کیا کہتا ہے، تو اس کے سنتے ہی اس قسم کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، گویا آپ نے الحاد اور بے دینی کی کوئی بدترین بات کہہ دی۔ تجربہ ہے میرے بھائیوں، میرا تو تجربہ ہے، کر کے دیکھ لیں۔ آپ قرآن کو لائیں سامنے، قرآن کی بات کریں، تو ایسی روایات بھی ملتی ہے۔ ایسی روایت ملتی ہے کہ جب تم بات کرو، کوئی بندہ تمہیں کہے، کہ کوئی بندہ تمہیں روایت بتائے، تو وہ آگے سے بندہ جواب دے کہ نہیں روایت نہیں، تو مجھے قرآن کی یہ بات بتاؤ، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ روایت ہے، تو سمجھو وہ گمراہ آدمی۔ یہ روایت میں نے سنی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی روایت سناؤ، وہ بندہ کہے آگے سے
کہ रवायत नहीं या रवायत के साथ मुझे कुरान से बात बताओ, समझो कि वो बंदा गवारा है। यहाँ तक बात पहुंच गई है। तो खैर बात हो रही है कुर्बानी की जगह की। यहाँ से बहुत सारी चीज वाज़ेह हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ बताया गया है, देखें यहाँ वो मकसूद नहीं मेरा कि इसकी फजीलत कितनी है, कुर्बानी की कितनी करनी चाहिए, इसके बाल इतने नेकियां मिलती हैं, इस पर पुलिस रात से गुजारती है बंदे को, और पता नहीं हम क्या क्या करते आ रहे हैं। ये मेरा मौजू नहीं है। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी जगह के बारे में कुरान पाक क्या बताता है कि इसको कहाँ जा आपने कुर्बानी करनी है। सूरत हज, ये इसकी 27 और 28 नंबर आयात मैं मफहूम इसका सामने रखता हूँ, बात ताकि लंबी ना हो और समझना आपको आसानी से हो जाए। आपने देखना है तो खुद देख लें, पढ़ लें इसको। 22 नंबर ये सूरत है हज, और 27 और 28 नंबर आयात, 2 आयात। और लोगों में हज का ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तामीर कर लिया, हो गया, उसके बाद की बात। और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तुम्हारे पास चले आएंगे, प्यादा भी और दुबली ऊंटनियों पर भी, जो कि दूर दराज रस्तों से पहुंची होंगी, ताकि लोग अपने फवायद के लिए आ मौजूद हों, और ताकि अयाम मुकर्ररा में जो इन चौपाओं पर, चौपाई कहते हैं जानवरों पर, ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। सो जानवरों में से खुद भी खाओ और मुसीबत ज़दा मोहताज को भी खिलाओ। 2 आयात उनका मफहूम। अगली आयत जो फैसला कौन आयत है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी सूरत हज की आयत है और 33 नंबर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकुम फीहा मनाफिउ इला अजलिम मुसम्मन सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक। ये है जी फैसला कौन आयत। दो टूक तरीके से बता दिया। क्या बताया, इन जानवरों में तुम्हारे लिए एक मुद्दत मुअय्यना तक फायदा उठाना है, इसके बाद इनके हलाल करने की जगह बैत अतीक खाना काबा के करीब है। ये जी जगह बता दी, कुरान ने मुतय्यन कर दी, मुअय्यन कर दी। जैसे नमाज में कि नमाज मगरब की तरफ किबला, मगरब हमारे इधर बनता है तो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो कोई बंदा कहे जी कि इसमें कौन सी बात है, सारी सिमतें अल्लाह की हैं, मशरक़ मगरब अल्लाह के हैं, किसी और तरफ भी नमाज मुंह करके पढ़ लो, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। या आप कहें कि पहले मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस तरफ मुंह करके पढ़ते थे। अब खाना काबा क्या जो है ये किबला बन गया, क्योंकि आप उस तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे हैं, लिहाजा आप भी कभी कभी उस तरफ ही मुंह करके पढ़ लें। क्या ये होगा? जाए नहीं, कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, खत्म होगी वो बात बिल्कुल। अब आपने नमाज पढ़नी है तो आपको मगरब की तरफ किबला रुख होकर ही पढ़नी है, वरना नमाज नहीं होगी। तो इसी तरह का मामला ये है, जब बता दिया है कि इसके बाद उनके हलाल करने की जगह बैते अतीक खाना काबा के करीब, ये जगह बता दी। आगे भी अर्ज करता हूँ, सिर्फ इन्हीं पर, इस पर ही नहीं, आगे ये सूरत हज की 36 नंबर आयत है, ऐसे आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, आगे काम आएगी। और कुर्बानी के ऊंटों को हमने अल्लाह के दीन की यादगार बनाया है। इन जानवरों में तुम्हारे लिए और भी फायदे हैं, सो तुम इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लिया करो। बस जब वो किसी करवट गिर पड़े तो खुद भी खाओ और सवाल करने वाले और सवाल ना करने वाले मोहताज को भी खिलाओ। हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे जेर हुक्म कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अगली एक और आयत, ये सूरत हज की 37 नंबर आयत है। अल्लाह के पास ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना इनका खून, और लेकिन इसके उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है, इसलिए अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे जेरे हुक्म कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो इस पर जिसकी उसने तुम्हें हदायत की है, और मोहसिनीन के लिए बिशारत है। यह सूरत हज की 37 नंबर। आगे मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, और भी आयात हैं। ये बहरहाल जो आयात मैंने पढ़ी हैं कुछ और हैं, इससे नतीजा क्या निकल रहा है, कुर्बानी सिर्फ हज के मौका पर है,
ये बात तय हो गई कि कुर्बानी सिर्फ हज के मौके पर है। कुर्बानी का मकाम मक्का मौज़मा है जहाँ हज होता है। कुर्बानी से मकसूद ये है कि इन जानवरों का गोश्त खाया जाए। ये है इसका असल जो हिकमत और मकसद है कुर्बानी का। देखिए वो जगह गया कहते हैं ना, कि वहाँ कोई घास भी पैदा ना हो, पैदा नहीं होती, कोई चीज नहीं, ऐसी जगह है वो। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जब अल्लाह ने कहा, तो उसकी हालत ये थी। अब भी वहां कुछ नहीं होता। खैर वो उस वक्त कहा, वहां सैकड़ों हजारों लाखों बंदों ने आना है इस मौके पर, तो क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? तो ये है कुर्बानी। अब आगे मैं बात करूंगा कुर्बानी से मुराद क्या सिर्फ जानवर की ही कुर्बानी है और नहीं कुछ, उसकी बात भी करते। बेआबो गया जगह है वो मक्का वाली, तो उस वहां खाने पीने का सामान साथ लेकर जाना, जिन जो हाजियों ने जाना है वहां। ये जो ईद की तकरीब पर दुनिया भर के शहरों में कुर्बानियां दी जाती हैं, इनका हुक्म तो एक तरफ, इन कुर्बानियां हुक्म तो एक तरफ, कहीं जिक्र तक भी कुरान में नहीं, आप देख लें। बल्कि ये कुरान के हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि जब कुरान ने कुर्बानी के मकाम को बिल तसरीह मुअय्यन कर दिया है, तो इस मुअय्यन को आम कर देना, जहां दिल चाहे आप ज़िबा कर लें, कुर्बानी कर लें, कुरानी मंशा के खिलाफ है। मसलन कुरान ने नमाज के लिए सम्मत किबला को मुअय्यन कर दिया, इसके बाद हर तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना कुरानी हुक्म के खिलाफ होगा। ये मैंने पहले बात की कि जब बता दिया है कि इसकी कुर्बानी की जगह मुकाम ये है, तो इसको आम कर देना ये कुरान के खिलाफ है। और आयात भी, बल्कि एक ही आयत है, ये लंबी आयत है, सूरह बकरा की मुख्तलिफ, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 196 नंबर, व आतिमुल हज्जा वल उमराता लिल्लाह फ़इन उसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदय। ये मैं हदय के लिए ये आपको आयत सुना रहा हूँ कि हज और उमरा को अल्लाह के लिए पूरा करो, फिर अगर तुम किसी वजह से रोक दिए जाओ तो कुर्बानी का जानवर, ये हदय के माने कुर्बानी का जानवर जो भी मुयस्सर आए, खाना काबा भेज दिया करो। जो भी आपकी कुर्बानी है उसको खाना काबा भेज दिया करो। ये आयत का ये हिस्सा ये कह रहा है। आगे है इस 196 नंबर की आयत है, वाला ताहलेकु रोऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला। मैं हदिये की बात कर रहा हूँ। और अपने सरों को उस वक्त तक मत मंडवाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मौका पर ना पहुंच जाए, मौके पर ना पहुंचे, जहां उसने ज़िबा होना है वो मौका हरम है। यहाँ हदियो, ये हदिया आपने ये भी ज़हन में रखना है। आगे फमन काना मिनकुम मरीदन औ बेही आजम मिर्रा से ही फाफिदिया तुम मिन सियामिन और सादा का 3 और 900 किन। ये भी लफ्ज याद रखना है आपने, 900 किन। अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो उसका फिदिया रोजे हैं या सदका या 900 किन कुर्बानी, 900 किन यहाँ आई। आगे अगर ये 196 नंबर आती है, आगे भी फिर जब अमन की हालत हो जाए तो दो शख्स उम्रा को हज के साथ मिलाकर दोनों से मतमत्ते हो तो जो कुछ कुर्बानी मुयस्सर हो ज़िबा करे। जाहिर है कि उम्रा हज मिलाकर कर रहा तो जो मुयस्सर हो वो खाना वही कुर्बानी करनी है। अगले आगे है, फिर जिस शख्स को कुर्बानी का जानवर मुयस्सर ना आए तो उसके ज़िम्मे 3 दिन के रोजे याम है हज में, और 7 दिन के जब हज से लौटने का वक्त हो। ये पूरे 10 हुए, ये इसलिए जिसके अहलो याल काबा के करीब ना रहते हो। ऐसे आपके सामने बयान कर दी। ये भी 196 नंबर आयत है। आगे किसी शख्स ने, चले ये बात हो गई। अच्छा, इन आयात में हदिया की जो बात मैंने कहा था ना कि आपने इसको याद रखना है, ये इसकी आयत में 196 में ही आ रही है ना। हदा जो महिला जो है, हदाया 900 का के अल्फाज आए हैं। हदाया जमा है हदिया की,
जिसके मानी है तोहफा। अपना हदिया, तोहफा, ये आम लफ्ज हमारे बोले जाते हैं, इसका मानी है तोहफा। खुद कुरान में है बल अंतुम बेहादियतिकुम तफरहून, ये सूर नमल की 36 नंबर। सिर्फ हदिया को समझाने के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अंतुम बेहादियतिकुम तफरहू, तुम अपने तोहफे में ही खुश रहो। ये मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजे, माल दौलत भेजी, तो उसके जवाब में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज ये कहा कि ये तोहफे तूने मुझे भेजे, तुम ही इसमें खुश रहो, मुझे जरूरत नहीं, अल्लाह ने जो मुझे दिया इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए ये भी जरूरी नहीं कि हदिया सिर्फ कुर्बानी के जानवर ही हो। अर्ज कर दिया ना कि पहले हदिया का लफ्ज आया है कि तुम वहां पहुंचा दो इनको जहां इसके पहुंचने की जगह है, तो यहां से इससे मुराद सिर्फ कुर्बानी का जानवर नहीं है, और भी तोहफा हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं खाने पीने वाली। ये मैं इसमें सिर्फ ये बात आपको मैं बताना चाहता था। मस्तैसरा मिनल हदय ने इस हकीकत को और भी वाज़े कर दिया, यानी तहाइफ में से जो कुछ भी मुयसर आ जाए इसे काबा भेज दे, उसको भी काबे भेजना है ताकि वहां जमा होने वालों के काम आए। ये है असल मकसद और असल हकीकत जो इसकी हिकमत है। लेकिन कता नजर इसके अगर हादजा और 900 के 900 के से मराद कुर्बानी के जानवर ही लिए जाएं, तो भी जो आयात अर्ज की हैं वाज़े है कि उनका मकाम काबा ही है, इन्हें वहां पहुंचाना होगा। हता यब लोग गल हादा यो महिंदा, वही बकरा की 196 नंबर, और वहीं ये ज़िबा होंगे ताकि उनसे इज्तिमाई हज में शरीक होने वाले खुर्दो नोश का काम लें। ये है जी मेरे भाई जो मैंने अर्ज की। आगे इसकी और भी बड़ी मुदल्लल मतलब बात है, दलील है ज़बरदस्त, जिससे इस हकीकत की मज़ीद तस्दीक हो जाती है कि कुर्बानी का मकाम खाना काबा ही है। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के इरादा से मदीना से आज़मे मक्का हुए, लेकिन कुरैश मक्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। यह हदैबिया का मकाम था जहां वो मशहूर सुलहनामा लिखा गया जिसे कुरान ने फतह मुबीन से तबीर किया है। इस ज़िमन में कुरान करीम में है हुमुल्लज़ीना काफरू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिया माकूफन यबलुगा महिल्ला। ये सूरत फतह की 25 नंबर है। क्या है ये? कुरैश मक्का वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, नीज कुर्बानी के जानवरों हदिया को रोक दिया कि वो अपने हलाल होने की जगह तक ना पहुंच सके। देखिए मेरे भाई कितनी वाज़ेह बात की जा रही है। हमारे पेश नज़र कुर्बानी का मकाम को मुअय्यन कर दिया है। यानी सवाल ये था कि क्या कुरान ने कुर्बानी के मकाम को मुअय्यन कर दिया है या इसे गैर मुअय्यन छोड़ दिया है कि मुसलमान जहां चाहें अपने अपने मकानों और गली कूचों में कुर्बानी दे दिया करें? नहीं मेरे भाइयों, कुरान ने मुअय्यन कर दिया है मकाम। कुरान की तमाम मुतल्लिका आयात आपके सामने आ चुकी हैं कि आप इन्हें एक मरतबा फिर देख लें और खुद फैसला कर लें इस बाब में कुरान का हुक्म मुअय्यन है या इसने चीज को गैर मुअय्यन छोड़ दिया है। नहीं, मुअय्यन है, गैर मुअय्यन नहीं छोड़ा। कुरान ने वाज़ेह बात बयान कर दी। ये मैं बस ये बात करना चाहता था, इन्हें याद में कुरानी का जिक्र कुर्बानी का जिक्र आज के ज़िमन में आया है, इसके अलावा कहीं नहीं। इन हक़ाइक़ को सामने रखिए और फिर सोचिए कुरान करीम की ऐसी खुली हुई सराहत के बाद इस बात के मतलब किसी शक व शुबा की गुंजाइश भी बाकी रह सकती है कि कुर्बानी का मकाम कौन सा है? देखिएगा, मकाम क्लियर होने से कितना कुछ क्लियर हो गया। ये बात क्लियर होगी, ये जो हम करते हैं ये तमाशा ही है। चलें जानवर ज़िबा कर लिए, खा लिए मिलकर, गोश्त का जो करते हैं हम वो सारा कुछ हो गया, चलें कुछ गरीबों को भी मिल गया, और ये कुर्बानी नहीं है। अगर कुरान सिर्फ इतना ही करता कि कुर्बानी के जानवरों का जिक्र हज की तकरीब के ज़िमन में कर देता
तो भी इस हकीकत के समझने में कोई दिक्कत ना होती कि कुर्बानी मक्का ही में होती है, यानी कि हज के साथ कुर्बानी का, लेकिन उसने इतने पर ही इक्तफा नहीं किया। कुरान ने सिर्फ कुर्बानी का जिक्र हज के साथ करने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि बार बार इसकी भी तसरीह फरमा दी कि कुर्बानी का मुकाम काबा है। अगर इसके बाद भी इस बात में किसी को शुबा हो सकता है और वो समझता है कि नहीं कुर्बानी हर गली कूचे में हो सकती है, तो इसका इलाज किसी के पास नहीं। मैं युद्ध ले लिल्ला हो फाला हादे या अल्लाह हो, ये आराफ की 186 नंबर है, देख लें। कोई बंदा अपने तौर पर जब गुमराह होने पे आ जाए तो उसको कौन हदायत दे सकता है? हाँ जी, जब बंदा अपने तौर पर देख लें, जिस तरह हमारा आलम है, इतनी वाज़ेह बात है, लेकिन देखें आप कुर्बानी की खालें गोश्त उलमा कराम को, मदरसों की एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया बनी हुई है, बना ली गई है, वो कैसे कहेंगे इसको ना करो? तो ये मेरे भाइयों में आपके सामने बात रखना चाहता था। अब थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है कि नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुने, ना सुने, हमने तो आवाज देनी है, बताना है आपको कि सही बात क्या है, कुरान के मुताबिक क्या चीज है। अब आप मुकाम और ढूंढते रहें जहां से ये हमने निकाला है या रवायात को हमने किया, उस पर बयान बात आगे करूंगा कि ये जो करते हैं कुर्बानी, कुरान से कौन सी आयात को लेते हैं। 2 आयात हैं और बिल्कुल वो आप वाज़ेह हो जाएगी आपके सामने बात। और ना अगर मैं करूं तो ये मेरी बात बयानती होगी, मैं करूंगा अगली नशिस्त में करूंगा। अब ये मेरी वीडियो काफी मुकम्मल हो गई है, तो यहाँ सिर्फ मैंने बताना था आपको कुर्बानी का मकाम, और वैसे ये बात वाज़ेह होगी कि इसका मकाम खाना काबा है और ये हाजियों के लिए है, सिर्फ ये उनके खाने पीने के लिए, ताम के लिए, खुर्दो नोश के लिए है। इसका मेन मकसद जो बात है इसकी बताने वाली, आगे जो करते हैं उनके जो दलाइल है वो भी मैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपके सामने अर्ज करूंगा। आपकी मेहरबानी, आप जरूर इस पर गौर करना मेरे भाइयों कि हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं। हमारे सामने किताबुल्लाह है, हम इससे क्या रहनुमाई लेते हैं। तो मैंने काफी कुछ अर्ज कर दिया कि अब हम कोई और मकाम ढूंढ लें जहाँ से ये साबित हो कि वो तजाद हो गए। तो ये कुरान में तजाद महाल है, इसने वाज़ेह इतनी आयात, मैंने इतनी चीज आपके सामने रख दी कि जिससे साबित होता है वाज़ेह सरी के कुर्बानी का मकाम खाना काबा ही है और कोई नहीं। ये जो गली ये मामला ठीक नहीं है, ये कुरानी नहीं है, इसका कुरानी और हज वाली कुर्बानी से कोई तल्लक नहीं है जो कुछ ये हम करते हैं। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।